Well, good morning, students. And today we are going to do the chapter Wounded Plants. Now, this chapter has been written by Sir Jagdish Chandra Bose, and he was born in 1858 and passed away in 1937. So we can say kind of first scientist of modern India. Now, Sir Jagdish Chandra Bose was a pioneer of modern science and scientific experiment in India. He was a physicist by training, profession, and his research interest. He is known for his research on radio and microwave signaling, optics, and biophysics. His contribution to plant science remains significant today because since we are going to do this chapter, it's about wounded plants. So he did a lot of work in plant science as well. Rather, it is said that J.C. Bose was at least 60 years ahead of his time. तो अपने टाइम से 60 साल आगे की उनकी जो सोच थी वो थी. And then he wrote a book, Response in Living and Non-Living, that was published in 1902, in which he proved that plants feel pain and understand affection and other feelings. Now, what happened, students, that generally we think that it's only us, the human being, who have feelings. We feel pain, we feel joy, we feel sadness, we suffer. And when it comes to plants, even about other animals, we do think that they too suffer pain. But when it comes to plant, we just don't pay any heed to the fact that they too are a living being. वो भी जिंदा हैं. और तो ये चैप्टर हमें यही बताने की कोशिश करते हैं वो कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है. नाउ द प्रेजेंट essay is an excerpt from the lecture that Acharya Bose delivered at Bose Institute on 7th February 1919. देखिए, आज से एग्जैक्टली 100 साल पहले ये लेक्चर उन्होंने दिया हुआ है. एंड इट वाज पब्लिश्ड इन आनंद बाजार पत्रिका on 10th February 1919. So the same month is going on in a way, and today is 8th. Anyhow, Anand Bazaar Patrika is the oldest newspaper बेटे. Calcutta से ही publish होता था ये paper, and it is still in publication, I think. So here in this essay, he draws our attention to the fact that our responses to the suffering of human beings and plants are altogether different. Like जब हम ह्यूमन बींग्स की सफरिंग की बात करते हैं तो हमारा सारा ध्यान उन पे जाता है, लेकिन प्लांट्स की तरफ हम कोई ध्यान नहीं देते हैं. तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारी सेंसिबिलिटी है प्लांट्स को लेके, इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फॉर आवर सेल्फ. नाउ वी सिंपली डू नॉट परसीव प्लांट्स सिंपैथेटिकली. हमारा कोई सहानुभूति नहीं होती प्लांट्स के साथ. हम उनके फ्रूट्स यूज़ करते हैं, फ्लावर्स यूज़ करते हैं, लीव्स यूज़ करते हैं, ब्रांचेस यूज़ करते हैं, ट्विग यूज़ करते हैं, एंड इन सम केसेस इवन रूट्स आर यूज्ड. एंड आई डोंट think that it is necessary to mention here even that plants are very, very useful for us. We all know that our life would stop if plants are not there. नंबर 1 पे तो ऑक्सीजन ही आती है बेटे, बिकॉज वी इनहेल द ऑक्सीजन विच इज़ बीइंग गिवन टू अस बाय द प्लांट्स. नाउ we simply do not perceive plants sympathetically, hence we remain immune to the suffering and pain that we cause to them all the time. तो हम पे कोई असर ही नहीं होता कि हम उनको कितना दर्द जो है वो पहुंचा रहे होते हैं. आप खुद सोच के देखिए कि जब आप किसी पेड़ को काटते हैं या यूं ही खड़े खड़े आप खड़े हैं, यू आर टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स एंड यू जस्ट प्लक अ लीव विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कि इससे पेड़ को दर्द हो सकता है अगर हम वो पत्ता तोड़ेंगे. हम अनकॉन्शियसली पत्ते तोड़ते रहते हैं, फ्लावर्स हैं, एनीथिंग विच कम्स इन आवर हैंड, वी डोंट पे एनी हीड टू द लाइफ in that leaf. We are not affected by it. We somehow think that it is also something like non-living. So he shows how plants behave like human being. इस ऐसे में वो हमें ये बताते हैं कि कैसे जो पौधे हैं वो भी इंसानों की तरह ही बिहेव करते हैं. The essay sensitizes us to the biosphere by challenging our hostile attitude toward plants and other aspects of nature. तो ये ऐसे एक तरह से हमें जागरूक करता है, सेंसिटाइज करता है
कि हमें प्लांट्स और अदर एस्पेक्ट्स जो नेचर के हैं उनका कैसे ख्याल रखना चाहिए, और ये जो हमारा होस्टाइल एटीट्यूड है, जो दुश्मनी वाला एटीट्यूड है, जो सिर्फ यूज़ करने वाला एटीट्यूड है नेचर को, उसको हमें कैसे बाय बाय बोलना चाहिए, उसको हमें रोक देना चाहिए। क्योंकि अगर आप आज का भी अखबार पढ़ेंगे बेटे तो उत्तराखंड में जो डैम है वो टूट गया है, और दैट इज़ बिकॉज ऑफ ग्लेशियर टूटने से वो बाढ़ आया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत पहले इसकी चेतावनी दे दी गई थी कि अगर इस परियोजना पे काम किया गया या इसी तरह से इंटरफेरेंस की गई तो कुछ बड़ी अनहोनी हो सकती है। देयर कैन बी अ कैलेमिटी एंड इट हैज़ हैपेंड। The loss of life is still not known because just it happened yesterday only. So how we affect nature and brutally affect nature, it affects us later on and very badly. It is then we realize that we shouldn't have done it like that. But ये जो वार्निंग दे रहे हैं सर जगदीश चंद्र बोस, ये 100 साल पहले से ही दे रहे हैं, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया और ना ही हम ध्यान दे रहे हैं। तो इस चैप्टर का आपके कोर्स में होने की वजह यही है कि आप जो है इस सेंसिटिविटी को समझें, इस बैलेंस को समझें कि नेचर से हमें लेना है तो नेचर को हमें वापस भी कुछ ना कुछ देना चाहिए। और कैसे दे सकते हैं हम? बाय बीइंग सेंसिटिव टू द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। नाउ इट sensitizes us to the biosphere by challenging our hostile attitude towards plants and other aspects of nature. It also helps us understand the dynamic of environmental consciousness. तो जो environmental consciousness है वो हम में बचपन से होनी चाहिए। ना केवल हम कम से कम यूज़ करें प्लांट बेस्ड चीज़ों का, यूज़ बेशक करें लेकिन अब्यूज़ बिल्कुल ना करें, और नए पेड़ भी हम लगाएं। Only then we can say that we have a very high kind of environmental consciousness. Otherwise the most pressing issue है ये आजकल का, आपको पता ही होगा कि environment को हमने कितनी बुरी तरह से निचोड़ लिया है, एक तरह से दोहन किया है हमने उसका, and we are not giving back anything. So we will have to face the consequences through the floods, earthquakes and tsunami and such glacier like things. तो हमें, अगर हम नहीं चेतते हैं इस टाइम पे, तो हमें तैयार रहना चाहिए कि आगे हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है। नाउ द essay drives home the point that all living beings are similar and hierarchical division of life is superfluous. एक बात और है बेटे, hierarchical division होती है order wise. We human being thinks that we are at the topmost, we are the crown creation of nature. हम सब जीवों से अपने आप को ऊपर मानते हैं। उसके बाद I will not go into the science of this. I will go into the general perception which we have as layman. Like आदमी सबसे ऊपर अपने आप को मानता है, उसके बाद शायद शेर को मानता है और फिर हाथी को मानता है, and something like that. We believe in some kind of hierarchical order कि कौन किससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड मे बी एंड में शायद ये एंड्स या जो मिलीपीड या सेंटीपीड्स हैं उनको हम रखते हैं, बिकॉज हम उनको बड़े इजीली ट्रैम्पल कर सकते हैं, अपने पैरों के नीचे रोंद सकते हैं। सो इट सेज प्लीज़ डोंट बिलीव इन सच हायरार्किकल order or the first, second, third kind of thing. All animals are equal and this hierarchy is superfluous. इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम कोई बहुत बड़े नहीं हैं औरों से, हम उतना ही आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और अगर हम इनको छेड़ेंगे तो ये जो छेड़छाड़ है ये हमें अफेक्ट करेगी. सो अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ व्हाट जगदीश चंद्र बोस वांट्स अस टू लर्न, बेसिकली टू लर्न, टू रियलाइज. क्योंकि जानते हम सब हैं बेटा, लेकिन रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं. हम एनवायरनमेंट पे जो असर हो रहा है उसको हम सब जानते हैं, एनवायरनमेंट हमें कैसे एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है हम सब जानते हैं, लेकिन वी हैवंट रियली रियलाइज्ड इट. वी आर नॉट रियली कॉन्शियस. हमें एहसास ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हो जाएगा. बस थोड़ा जानते हैं, नॉलेज है, हमें पता है कि हाँ ख़राब हो रहा है एनवायरनमेंट, पेड़ कम हो रहे हैं, पहाड़ जो हैं वो भी लिविंग बींग्स के लिए तोड़े जा रहे हैं, बीचेस पे जो लोगों का आवागमन है वो बढ़ गया है. देयर आर सो मेनी थिंग्स वी ऑल नो अबाउट बट वी हार्डली डू एनीथिंग अबाउट इट. नाउ लेट्स स्टार्ट द प्ले वुंडेड प्लांट्स.
So it is the first stanza, and I would later on we will discuss the main things in it. And the first stanza, it says, it is little over 4 years now that embodiment of world tragedy stalked over Western Europe. So world tragedy, he talks of World War One, which lasted from 1914 to 1919. तो ये कह रहे हैं कि 4 साल हो चुके हैं इस बात को जब वर्ल्ड ट्रेजेडी हैपन टू द वर्ल्ड, वेस्टर्न यूरोप स्पेशली. द फेयर फील्ड ऑफ फ्रांस एंड ब्राइट स्काई वॉज अंडर अ पॉल ऑफ बैटल स्मोक. तो जो फ्रांस का स्काई था वो लड़ाई से जो धुआं निकला हुआ था उससे काला हुआ पड़ा था आसमान वहाँ का. Our sight could not penetrate through the dense gloom, and the mortal cry of the wounded and dying and drowned by hoarse roar of 1,000 did not reach our ears. We were deafened. लड़ाई से जो तबाही हो रही थी वो हमें सुन नहीं रही थी. We couldn't listen to that. But from the time the Sikh and the Pathan and the Gurkha and the Bengali and the Maratha and the Rajput flung themselves in front of battle, from that day our perception has become intensified. लेकिन जब से इंडियन रेजिमेंट आई वर्ल्ड वॉर 1 में पार्टिसिपेट करने के लिए, उस रेजिमेंट में गुरखा, बंगाली, मराठा, राजपूत सैनिक थे सारे. तो तब से कहते हमने ध्यान देना शुरू कर दिया. और इंटरेस्ट गोट इंटेंसिफाइड. द डिस्टेंट क्राई ऑफ दोज हुज लाइफ ब्लड हैज क्रिम्सन द वाइट फील्ड ऑफ स्नो हैज फाउंड रेवरब्रेटिंग एको इन आवर हार्ट. तो जब हमारे सैनिकों का खून गिरा उस सफ़ेद बर्फ़ पे, तब हमारा दिल जो है वो उसमें उनकी चीखों की जो गूंज है वो और ज़्यादा गहरी हो गई. What is that subtle bond by which all distances are bridged over and by which an individual life become merged in larger life? तो ऐसा कौन सा बॉन्ड है जिससे सारी जो डिस्टेंस है वो ब्रिज हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं आपस में. डिस्टेंस मायने नहीं रखती और जो इंडिविजुअल लाइफ है वो एक लार्जर लाइफ में मर्ज हो जाती है. इट्स क्वाइट अ फिलोसॉफिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन बच्चे. सो सिम्पथी इज़ दैट बॉन्ड. तो वो खुद ही जवाब देते हैं कि सहानुभूति जो होती है ना एक इंसान की दूसरे इंसान से, इंसानियत जो होती है, सिम्पथी इज़ दैट बॉन्ड बाय विच वी कम टू रियलाइज द यूनिटी ऑफ ऑल लाइफ. तो तब हम जान पाते हैं कि जो सारी लाइफ है वो यूनिफाइड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है. नाउ Before us are spread multitudinous plants, silent and seemingly impassive. अब हमारे सामने हज़ारों की संख्या में प्लांट्स होते हैं. हम रोज़ देखते हैं कॉलेज आते जाते. अगर आप गांव में रहते हैं तो खेतों में जाते हुए there are plants and plants, multitudinous, बहुत ज़्यादा नंबर में प्लांट्स होते हैं. But we think they are impassive. They are not easily excited. They are silent. To the extent that they are not alive, even we think like that. They are mute spectator of human life basically. They too like us are actors in the cosmic drama of life, like us the plaything of destiny. तो जैसे जो इंसान है वो इस यूनिवर्स में एक plaything है, उसी तरह से जो plants हैं they too have a destiny of their own. In their checkered life, light and darkness, the warmth of summer, frost of winter, drought and rain, gentle breeze, whirling tornadoes, life and death alternate. तो जैसे इंसान की लाइफ पे बेटे सब चीज़ों का असर होता है, सर्दी का, गर्मी का, ठंडी हवा चल रही है, क्या हो रहा है, कोहरा है, गर्मियाँ हैं, तूफ़ान है, इसी तरह से उनकी लाइफ में भी इन सब चीज़ों का असर होता है. वो या तो इनको फेस करते हुए जिंदा रह जाते हैं या फिर वो मर जाते हैं. सो लाइफ और डेथ ऑल्टरनेट्स. सो दिस इज द फर्स्ट सिमिलैरिटी वी कैन से. सो नेचर अफेक्ट्स एवरी लाइफ एंड प्लांट्स डू हैव लाइफ. नाउ वेरियस शॉक्स इम्पिंज ऑन देम बट नो क्राइज रेज्ड इन आंसर. ह्यूमन बींग्स, हमें दर्द होता है बेटे, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते हैं. लेकिन जब हम प्लांट्स को दर्द पहुंचाते हैं, जब हम प्लांट से एक पेड़ से हम एक पत्ता तोड़ते हैं, तो क्या वो रोता है? क्या वी डू वी हियर द क्राई? नो, वी डोंट. दे डोंट मेक एनी नॉइज लाइक ह्यूमन बीइंग. नाउ आई शैल नेवरदलेस ट्राई टू डिसाइफर सम चैप्टर ऑफ देयर लाइफ हिस्ट्री. सो मैं उनकी लाइफ हिस्ट्री से कुछ चैप्टर समझाने की कोशिश करूँगा और कुछ नहीं करूँगा. So he says, when a man receives a blow or shock of any kind, his answering cry makes us realize that he is hurt.
तो जब किसी आदमी को कोई एक मुक्का लगता है या किसी तरह का शॉक लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है फॉर दैट मैटर, तो जो उसका रिस्पॉन्स होता है, दैट इज़ द रिस्पॉन्स ऑफ अ क्राई. इट शोज अस दैट पर्सन इज़ हर्ट. बट म्यूट मेक्स नो आउट क्राई. अगर इंसान के पास जुबान ही नहीं है, कि कोई ऐसा है जो गूंगा है, वो कोई जो आवाज़ है वो नहीं कर पाएगा. सिमिलरली जो हमारे ट्रीज़ हैं, प्लांट्स हैं, वो सारे म्यूट हैं एंड दे कैन नॉट मेक अ क्राई. अगर उनको दर्द होता है तो वो कोई भी आवाज़ दे के बेचारे हमें नहीं बता पाते कि उनको कितना दर्द हो रहा है. This is an essay for a very sensitive soul, you know, and it is something akin to Wordsworth. देखिए आप सिमिलरिटी देखिए कि जो वर्ड्सवर्थ थे वो 1750 के आसपास, 1850 के आसपास ये सब लिख रहे थे. Wordsworth told us that there is soul in a particular. He used nature as a living being. He used nature as a soothing, balming soul, which provide us serenity. So the same thing is being said by Jagdish Chandra Bose in this essay, that we should be sensitive. Now that was a poet's cry. Wordsworth's love for nature was a poet's cry for us to be sensitive towards plants, and here we have a scientist who is saying the same thing, that plants have life and we should be very responsible about it. So I think this correlation you can understand, that what Wordsworth said about nature and what Mr. Jagdish Chandra Bose is trying to say in this essay. I stop it here and I will resume it in second part of our video. Thanks for listening me. Good day.